Good morning, students. Till now, we studied the functions of the skeleton. The skeleton gives the shape to our body. It protects some of the delicate organs like brain, heart, and it also keeps the organs in place. We discussed many bones and joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. कार्टिलेज एक तरह के ऐसे पार्ट हैं जो बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं और इजीली बेंड हो सकते हैं। जैसे हमारे ये कान के ईयर लोब में अपर पार्ट में आपने देखा होगा एक हल्का सा हार्ड चीज़ है जो बेंड भी हो जाती है इजीली। Feel your ear. Do you find any hard bony part that can be bent? There do not seem to be any bones here, isn't it? Do you notice anything difference between the earlobe and the other portions? As you press them between your fingers, आप इस तरह से कान को अलग अलग जगह से पकड़ के देखिए, सिर्फ इस जगह पे आपको वो कार्टिलेज फील होता है। Do you feel something in the upper part of the ear that is not soft as the earlobe but not hard as the bone? ये कान के नीचे के हिस्से जितना सॉफ्ट भी नहीं है और बोन जितना हार्ड भी नहीं है ये पार्ट। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Now we have learnt about the bones in our body and about joints that help us to move in different ways. What makes the bones move the way they do? Make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any change in your upper arm? Touch it with the other hand. आप इस तरह मुट्ठी बंद करके ये आप इस तरह से हाथ ऊपर को बेंड करें और यहाँ पे टच करके देखें आपको क्या फील होता है। यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म। आपको ये थोड़ा सा पार्ट मोटा सा फील होगा। दिस इज़ अ मसल। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल हमारा ऊंचा उठ जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। अब आप उसको नॉर्मल पोजिशन पे वापस लाओ। वॉट हैपन टू द मसल? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोन्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन आपको अपने लेग में भी फील होगी जब आप भागते हो या चलते हो। When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथ में कम होती है तो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, थिक हो जाती है और लेंथ में शॉर्ट हो जाती है। Muscles work in pairs. When one of the arm contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. एक बोन को मूव करने के लिए दो मसल्स जो हैं वो पेयर में वर्क करती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जो उसको पुल करता है और रिलैक्स के लिए दूसरा मसल वर्क करता है। Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about a earthworm or a snail? Let us study the manner of movement, that is the gait of the some animals. अब हम movement in animals, that is gait of animals का पढ़ेंगे। First we will study about earthworm. In activity 5, observe an earthworm moving on a soil in a garden. आपने earthworm केंचुआ देखा होगा। Gently lift it and place it on a piece of blotting or a filter paper. Observe its movement. Then place it on the smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement. Is it different from that on the paper? In which of the above two surfaces do you find the
दैट द अर्थवर्म इज़ एबल टू मूव ईजिली। तो आप अर्थवर्म को आराम से उठा के किसी फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पर रखें और उसके बाद किसी ग्लास प्लेट पर रखें, दोनों सर्फेसिस पे उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करें। द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। आपने देखा होगा केंचुए की बॉडी में छोटे 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 छल्ले होते हैं जो एक से एक जुड़े होते हैं। An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. मसल्स की हेल्प से ये अपनी बॉडी को एक बारी स्क्वीज करता है, एक बारी एक्सटेंड करता है, जिससे इसकी मूवमेंट होती है। Now during movement, the earthworm first extends the front part of the body. पहले ये आगे के फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और पीछे के हिस्से को अपनी जगह पे फिक्स रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। फिर ये आगे के अपने हिस्से को फिक्स करके पीछे के पार्ट को मूव करता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड द एंड फॉरवर्ड। फिर ये अपनी बॉडी को आगे की स्क्वीज करके खींच के और आगे के पार्ट को मूव करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इससे ये छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करता है। Repeating such muscle expansions and contractions, the earthworm can move through soil. और इस तरह ये मिट्टी में अपनी मूवमेंट करता है। Its body secretes a slimy substance to help the movement. Slimy means हल्का चिकना सा कोई पदार्थ इसके बॉडी में सिक्रीट होता है, निकलता है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है। How does it fix parts of its body to the ground? ये ग्राउंड में अपनी बॉडी को कैसे पकड़ के रखता है? Under its body it has large number of tiny bristles, hair-like structures projecting out. इसकी नीचे की तरफ बॉडी के बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे बाल की तरह रेशे होते हैं। The bristles are connected with muscles, जो कि अंदर मसल से जुड़े होते हैं। The bristles help to get a good grip on the ground. और ये इन bristles की हेल्प से ये ग्राउंड में मिट्टी में अपनी पकड़ बना के रखता है। The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. earthworm क्या करता है, जिस तरह मिट्टी के अंदर घुसता चला जाता है, वो मिट्टी खाता खाता ही उसके अपने खाने को खाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अपनी बॉडी से ही निकाल देता है, और इस तरह ये जो सॉइल को एक तरह से स्लोली डिग करता है। इसीलिए इसको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे के सॉइल को ऊपर लाके टर्न करता रहता है और डिगिंग करता रहता है। नाउ इन स्नेल एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और अ फील्ड। देखिए आपने स्नेल देखा होगा। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसके ऊपर जो भी ये राउंड चीज़ है, ये इसका स्ट्रक्चर है, जो ये शेल है। एंड इट इज़ आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये स्नेल का बाहर का स्केलेटन, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, इसके बाहर स्केलेटन होता है। ये जो हार्ड शेल है, इसका स्केलेटन का वर्क करता है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये इसका हड्डी का नहीं बना होता है और एक सिंगल यूनिट का है, इसमें कुछ भी जॉइंट्स नहीं है और ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, ये सिर्फ इसको अपने साथ घसीटता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। आप इसको ग्लास प्लेट पे रखो और फिर इसकी मूवमेंट ऊपर उठा के नीचे से ऑब्जर्व करो। A thick structure and the head of the snail may come out of the opening. इस ओपनिंग में से इसका सर बाहर निकलता है। The thick structure is its foot. जो एक thick structure अंदर बाहर आता है वो इसका पैर का काम करता है। Made up of strong muscles, जो सिर्फ muscles का बना है। Now carefully tilt the glass plate. हल्का सा ग्लास प्लेट को टेढ़ा करें। The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of the snail slow or fast as compared to the earthworm? अब हम इसकी
मूवमेंट कंपेयर कर सकते हैं स्नेल से, कि वो तेज़ चलता है कि अर्थवर्म से स्लो चलता है स्नेल। थैंक यू।